Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to learn about the virus exposure and its role on the tumor. So how a virus exposure leads to a tumor formation. In this regard, the foremost thing which I told you earlier as well was the contribution made by this German surgeon and physician, well-known physician in 1910. And his contribution is basically on the domain of the identification of the first virus leading to the formation of a tumor in chicken, and his name was Peter Ross. On the basis of his name, and he attributed that virus as Rous sarcoma virus. So let me write it over here somewhere. That is called Rous sarcoma virus. Now, this guy has identified that a farmer visited to his clinic and said that this chicken was like a, what you can say like won a prize or something, has a tumor on its breast, so he wants to excise that tumor. The physician and the surgeon, Peter Ross, carried this opportunity to excise that tumor mass and probe it for a further experimentation. So what he noticed, that he is able to, what you can say, that after the extraction or excision of that tumor from that chicken, he triturated that mass, mixed it with the sand so that he can get the fine particles, and then he injected those particles into other chicken's breast so that he could be able to identify the most causative region and identify whether there is a tumor formation or not. So let me change the color and we can extend it further. So he noticed that he can inoculate the tumor formation in healthy chickens based on the inoculum he retrieved from the earliest chicken. यानी एक ऐसी मुर्गी जिसके अंदर पहले से एक ट्यूमर मौजूद था, उस ट्यूमर को उसने एक्साइज किया, उस ट्यूमर को एक्साइज करने के बाद ग्राइंड किया उन सार्कोमा सेल्स को. सार्कोमा क्या होता है? सार्कोमा वो होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर होता है. अच्छा, और उसको उसके सैंड से मिक्स करने के बाद उसने देखा कि जब वो कलेक्ट करता है, फिल्ट्रेट और दूसरी हेल्दी चिकन्स में इंड्यूस करता है, तो उनके अंदर भी कैंसर हो जाता है. जैसे ये आपके सामने एक कैंसर का एविडेंस उसने निकाला. सो इसका मतलब ये था कि जो कॉजेटिव एजेंट है वो इसी ट्यूमर के अंदर मौजूद है और वो सम हाउ इफ़ेक्ट करता है इनाकुलेशन को, कि दूसरा जो चिकन है वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है ना. ठीक है. इसके साथ साथ लेटर ऑन ही continued this experiment, and based on these experiments he was awarded a Nobel Prize in 1960s. Earlier to that, ये हालांकि जो डिस्कवरी है ये तकरीबन अर्ली 19 मेरा ख्याल है कि अराउंड अबाउट 1910 के ड्यूरेशन में है, but he was awarded in 1960s the Nobel Prize era. इसमें उसको जो है ना अवार्ड मिला. अच्छा, तो इन सारी एक्सरसाइजेस का बेसिकली जो मकसद था वो ये था कि ही वाज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, and in an era where people were discovering that typhoid and other जो outbreaks and they are being attributed by different bacterias and viruses, and isolation from a cancer has a very substantial contribution. Later on, people came to know that this Rous sarcoma virus is made up of four main kind of genes. Those genes are attributed for the formation of envelope, गैग हो गया, कैस्पिड हो गया, पॉलीमरेज जीन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू आ रहा है, और ये जो चार जीन्स के कंपोनेंट्स हैं, ये चार जीन्स के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. और फिर राउस सार्कोमा वायरस को फॉर द फर्स्ट टाइम डॉल्बिको मीडियम के अंदर जब ग्रो किया गया तो देखा गया कि नॉर्मली सेल्स जो थे दे शुड stop a contact inhibition. When cell comes in contact with the neighboring cell, they stop. But once the Rous sarcoma virus supernatant has been transformed or introduced into the chicken embryo fibroblast, these fibroblasts won't stop. They in fact start replicating and dividing, और इनकी रेप्लिकेशन और डिवीजन इतनी ज़्यादा थी कि ये दूसरे सेल को देख के रुकते नहीं हैं. यानी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करो ना
एक लीनियर अरेंजमेंट के सेल्स हों और वो सेल्स अपनी जगह पे खड़े हों, तो इन सेल्स ने, जैसे देखें ये सेल है फॉर एग्जांपल, दिस वन इज़ अ सेल, नाउ दिस सेल should stop dividing when it come in contact with the other one, ठीक है, but they don't. They start replicating and they start dividing on an irrational term, irrespective of what the shape they attain. They start continuous division, and this continuous division of cells made them that apart from monolayer they form multiple layers. Multiple layers की एक proof आपके सामने ये जो foci नज़र आ रहे हैं, these round structures, these are the round structures. ये foci जो बन रहे हैं इसका मतलब है कि the cells are dying as well as there are certain cells which are increasing in number apart from a single monolayer formation. यानी अगर हम इसको एक साइड के व्यू से देखें तो ये देखें, ये पेट्री डिश है, ये सेल्स हैं, ये सेल्स जब अपने कॉन्टेक्ट्स में आए और नॉर्मली चिकन फाइब्रोब्लास्ट जो हैं, एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट, दे शुड ग्रो एंड then after certain period of time when they come in contact with the neighboring cell they stop, that this is their boundary and they should not extend it more any further. But what happened when the Rous sarcoma virus is introduced into these petri dishes? The cells won't stop. In fact, they form layer by layer formation on the top of each other. And this layer formation is irregular in pattern. Now, this irregularity in pattern and then the multiple layers formation is something interesting for the scientists. That means that the cell morphology is being changed, and it is for the first time the cells are being grown on a petri dish. Now scientists have produced an alternate model. ठीक हो गया? और बल्कि इसके साथ साथ जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जनाब राउस सार्कोमा वायरस निकला तो था 1910 के अंदर, लेकिन 1960s के अंदर जाके तो पैटर्न रॉस को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। तो इसकी रीज़न एक छोटी सी वजह ये भी थी कि इस डिस्कवरी के बाद कि वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, वायरस लीड्स टू कैंसर, यानी वायरस का एक्सपोजर कैंसर कॉज करता है. There was an unfortunate misinterpretation which was being given, not intentionally, but were given by an other physician, which name is Gibbs Fibger. गिब्स फिबगर जो है ये वो नाम है जिसको 1920s के अंदर जो है ना नोबेल प्राइज़ मिला. नोबेल प्राइज़ इस बात पे मिला कि ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट stomach cancer is caused by Spiropetra worms. Now Spiropetra worms were basically meant for metaplasia of the stomach lining. In 1926 गिब्स को इस बात की आइडेंटिफिकेशन पे इनाम दिया गया कि इसने वो पैरासाइट आइडेंटिफाई कर लिया है जिसकी वजह से स्टोमिक कैंसर होता है. लेकिन लेटर ऑन 1927 में ये पता चला, और लेटर ऑन 1 साल के बाद इसकी डेथ होगी, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि नहीं, एक्चुअली गिब्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो फॉल्टी था. क्यों? क्योंकि इसने जो रेट्स लिए थे वो रेट्स का मेन जो एनर्जी सोर्स था या डाइट था वो रेट्स जो थे वो एक ऐसी फैक्ट्री के रेट्स थे जो कि शुगर मिल थी और उनका जो मेन सोर्स था वो शुगर था, और उसकी वजह से उनकी जो स्टोमिक वाल थी दैट वाज ऑलरेडी बिन सफरिंग फ्रॉम द वर्म्स इन्फेस्टेशन ऑफ स्पायरोपेट्रा वर्म्स. तो इसने ये कह दिया कि स्पायरोपेट्रा वर्म्स जो हैं या वर्म्स जो होते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शंस जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमिक कैंसर, जो कि गलत ऑब्जर्वेशन थी. दैट्स वाई जो कैंसर रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि यू हैव ए हिस्ट्री ऑफ थ्रोइंग बेबी अलॉन्ग विद बाथ वाटर. तो ये वर्ब आपने एक प्रोवर्ब भी सीख ली. क्या मतलब? असल में तो आपने पानी फेंकना था ना, नहाने वाला टब का पानी फेंकना था, लेकिन जब आपने उसको फेंकना शुरू किया तो आपने बेबी को भी फेंक दिया. यानी डूइंग समथिंग गुड, डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, आपने उसमें एक अपना बड़ा नुकसान भी कर लिया. दिस इज कॉल्ड throwing baby along with baby waters, ना, bath water, throwing baby out along with bath water. तो ये वो इडियम भी है. और ये कैंसर रिसर्च के अंदर जो एक रॉन्गली नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया 1926 में, वो इसी एजम्पशन पे था कि शायद जो कैंसर है वो पैरासाइट्स की वजह से होता है. अच्छा, अब जब ये अवार्ड हुआ और उसके बाद थ्योरी चैलेंज हो गई तो बहुत अरसे तक लोगों ने वायरसेस या
पैरासाइट्स के ऊपर जो काम किया है वो अंडरमाइन हो गया, कि जो इवन रॉस का काम था जो 1910 के अंदर डिस्कवर हुआ है, उसके ऊपर भी रिसर्च लिमिटेड हो गई और उसकी जगह सारा इंटेंशन एम्स टेस्ट, कार्सिनोजन, कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन की तरफ चला गया. Alright, anyway, coming back to the topic now, reversion back to the cell transformation is something interesting. So, what has happened, as I already told you, that the cells are monolayer in formation, like chicken embryo fibroblast examples. When are infected with Rous sarcoma virus particles, there are a certain type of cells which start replicating and increasing in size. What we are observing right now over here, look at the cells. The morphology is being changed and the cells are increasing in proportionately. ठीक हो गया. अच्छा, ये है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सेल्स की दिखाई गई कि अपार्ट फ्रॉम जो लिविंग बॉडी है उसके अंदर कैंसर होने के हम उसको कैंसर सेल लाइन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट क्या चीज़ हमें समझ आई, वो ये समझने की कोशिश की गई कि क्या ये वायरस जिनोम, राउस सार्कोमा हो या कोई भी वायरस हो, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये वायरस अपनी जगह से एक बार एक्सपोज होता है, इंडिविजुअल को बीमारी काज करता है एंड देन इट हिट एंड रन, लाइक जैसे बाकी बीमारियों में आ जाता है, साल्मोनेला टाइफी आता है तो टाइफाइड देता है और उसके बाद टाइफाइड ख़त्म हो जाता है. तो क्या वायरस हमेशा के लिए मौजूद रहता है या वायरस एट सर्टेन टाइम पॉइंट्स निकल जाता है? इस पॉइंट पे ये एक्सपेरिमेंट एक ड्रा किया गया और एक्सपेरिमेंट ये था कि नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के सेल्स लिए गए और RSV यानी राउस सार्कोमा वायरस का एक म्यूटेंट तैयार किया गया. नाउ द म्यूटेंट कंटेन्स a unique property of temperature sensitivity. That temperature sensitivity characteristic was basically कि ऐसा वायरस जो हायर टेम्परेचर पे ग्रो नहीं करता, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म कर देता है आम प्रॉपर्टी. यानी ये वही वायरस है जिसका जिक्र आप पीछे पढ़ चुके, लेकिन इस वायरस में ये फीचर एडिशनल था कि इसमें टेम्परेचर अगर हाई हो, सेल्स को हायर इंक्यूबेशन पे रखें तो वो ग्रो नहीं करते. अब दो टेम्परेचर्स यूज़ किए गए. 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक पेट्री डिश रखी गई, उस पेट्री डिश में सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गए जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, यानी इस तरह के कैंसर के जो सेल्स हैं ना वो बन गए. लेकिन जब भी उन्हीं सेल्स को आपने हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर दिया, हायर टेम्परेचर का एक्सपोजर दिया, तो सेल्स ने वापस नॉर्मलेंसी अटेन कर ली, यानी सेल्स ने रैपिडली डिवाइड करना बंद कर दिया. और फिर जब उसको दोबारा से रूटीन टेम्परेचर पर लेके आए, शिफ्ट किया गया, टेम्परेचर डाउन लोअर किया गया, तो सेल्स दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो गए. तो इसका मतलब ये था कि जो एजेंट है वो राउस सार्कोमा वायरस ही है जो कि हिट एंड रन नहीं कर रहा, बट इट विल एक्चुअली इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेंटेन इट. ना सिर्फ इनिशिएट करता है बट इट ऑल्सो मेंटेन इट. व्हाट इज हैज बीन रिटन ओवर हियर, इट ऑल्सो इनिशिएट द प्रोसेस एंड मेंटेन इट. क्योंकि अगर वो सिर्फ और सिर्फ इनिशिएट करता तो हाई टेम्परेचर पे भी ये सेल्स के अंदर फीचर रहता कि वो ट्रांसफॉर्म रहे. क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि जो राउस सार्कोमा वायरस हमने डाला था वो टेम्परेचर सेंसिटिव था, वो हाई डिग्री टेम्परेचर यानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम नहीं करता. ठीक हो गया. सो ये हमने समझा कि वायरस मौजूद रहता है ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स के अंदर. फिर ये नोट किया गया कि क्या सिर्फ और सिर्फ RNA वायरसेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर के लिए या DNA वायरसेस भी होते हैं. ठीक है. तो ये देखा गया कि DNA वायरसेस भी निकल रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं. सबसे पहले जो वायरस आइडेंटिफाई किया गया DNA के अंदर, DNA बेस्ड वायरस, वो आप मेरे पिछले लेक्चर्स में भी देख सकते हैं. दैट वाज आइडेंटिफाइड इन रैबिट्स and it was identified by a scientist named Shop, SHOPE, Shops. Now, Shops identified that in rabbit's tail there are certain wart-like structures, warts. Now he identified these warts as papillomas. ठीक है. And these Shop fibroma viruses were identified as DNA viruses. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसने ये कहा कि ये वायरसेस भी हैं जो कि नॉट ओनली RNA, DNA वायरसेस आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग ए सेलिएंट फीचर. और इसी तरीके से फिर राउस सार्कोमा जो निकला था, ह्यूमन T सेल लिकीमिया निकला. हाँ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें
SV40. SV40 means Siamese virus 40. 40 is the number of isolates, यानी जितनी अटैम्प्ट की गई ना उनको नंबर दे दिया गया। पहली अटैम्प्ट हुई वायरस आइसोलेशन की, नहीं निकला, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो SV40 अटैम्प्ट में जो वायरस आइसोलेट हुआ उसको कहा गया सियामीज वायरस। और ये आइसोलेट किया गया कैट्स में से, सियामीज बिल्लियाँ होती हैं ना, उनमें से आइसोलेट हुआ। ठीक हो गया। सो इसका मतलब हमने इस स्लाइड में ये समझ लिया कि डीएनए वायरस भी होता है और आरएनए वायरस भी होता है। अब हमने एक और चीज़ समझनी थी, और वो ये कि ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इन सेल जनरेशन। नाउ लाइज अ वेरी बिग क्वेश्चन, व्हाट इट इज। इट इज़ बेसिकली एन अजम्पशन कि जैसे हम समझते हैं कि जो सेल्स हैं मेमेलियन सेल्स, दे कैरी 50% इंफॉर्मेशन फ्रॉम मदर, 50% from father, or what you can say patrilineage information, and this information is stored in the nucleus in the form of chromosomes, and then it is being passed on to generations under a very regulated procedure. Okay? Now people were interested to know how it comes that the transmission of virus in cell generations is maintained, and how do an irregular process of virus inoculation or infection to a cell is leading to be transformed, कि वो subsequent generations में कैसे transform हो रही है। फर्ज करें ये न्यूक्लियस है, ठीक है। Let me change the color over here for a virus, and so that we can better understand the phenomena. तो ये सवाल पैदा हुआ कि ठीक है, ये सेल डिवाइड होगा तो इसके साथ इसका न्यूक्लियस और इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी डिवाइड होगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक सर्कुलर डीएनए हो वायरस का, और वो डीएनए जो कि ठीक है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे लिटिक फेज में सेल्स जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं, और इसी की तरह से ये जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो निकलते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हर अपकमिंग जनरेशन के अंदर आपको इन्फेक्शन ही मिलता रहे। मतलब ये भी तो होना चाहिए ना कि कुछ इस किस्म के सेल्स बन जाएं जिन सेल्स में न्यूक्लियस तो मौजूद हो लेकिन वायरस ना हो, और कुछ ऐसे सेल्स हों जिनमें न्यूक्लियस हो और वायरस भी हो, यानी यहाँ पे इस तरह का पोर्शन मिल जाए हमें। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इस बात का जो जवाब है वो एक एक्सपेरिमेंटेशन से ही पता चला, और ये बेसिकली अमलगम था डिफरेंट इवेंट्स का। इसमें ये किया गया कि जो SV40, मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया ना, SV40 जो सियामीज वायरस है, ये बेसिकली ट्यूमर वायरस नहीं था, लेकिन ट्यूमर वायरस इसका रैपिड म्यूटेंट है जो कि ट्यूमरोजेनिसिटी कॉज कर रहा था। तो उस वायरस के अंदर, यानी SV40 खुद एक मेन ट्यूमरोजेनिक वायरस नहीं था, लेकिन उनमें देखा गया कि उसका एक म्यूटेंट फॉर्म है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्यूमरोजेनिसिटी। देन the main component which was being identified on the exposure of SV40 to the cells was called as LT antigens. LT, large T antigen, इसका नाम LT antigen रख दिया गया। फिर जब उनको सेल्स में ऑब्जर्व किया गया, यानी LT एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई गई होंगी, उन एंटीबॉडीज से जब सेल्स को स्टेन किया गया तो देखा गया कि LT एंटीजन ग्रेइश कलर या ग्रीनिश कलर कॉज कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। ये देखें, ये एक सेल है, लेट मी शो यू इन अ वेरी व्हाट यू कैन से डिस्टिंक्टिव कलर यूजेज। अब मैं लेट्स सेटल इट ऑन येलो कलर, ठीक है। अच्छा, इस वक्त आपके सामने एक ये इंडिपेंडेंट सेल है, हम इस सेल की एग्जांपल अगर ले लें, ये सेल है, ठीक, ये सेल है। इस सेल को इन्फेक्ट किया गया है SV40 वायरस से। किस वायरस से? SV40 वायरस के इन्फेक्शन से। अब इसको जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग की गई, बिकॉज वी वांट टू नो वेदर this SV40 virus lies in the cytoplasm or in the nucleus. साइटोप्लाज्म ये वाला, कैसे साइटोप्लाज्म मुझे पता चला? क्योंकि ये जो रेडिश रेडिश आपको नज़र आ रहे हैं ना फ्रेम्स, ये these reddish frames, these are basically the actin fibers which are present on the cytoplasm and the cytoskeleton portion. यानी इसी तरह का पोर्शन इसका दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और ये सेल दूसरा है, और इसका ये जो रेडिश पोर्शन है ना, दिस इज द एक्टिन filaments, और these are present around the nucleus. अब SV40 का मैंने आपको भी एक वो बताया है
क्या उसे कहते हैं, एंटीजन। और SV40 एंटीजन के बारे में मैंने आपको ये बताया कि दिस SV40 एंटीजन, SV40 का जो एंटीजन है उसका नाम रखा गया टी एंटीजन। SV40 जो वायरस है वो जब एक्सपोज करता है कैंसर सेल्स के अंदर या सेल्स को, तो वो अपना एक एंटीजन जो है वो एक्सप्रेस करता है सेल्स के ऊपर, उसका नाम था टी एंटीजन। जब टी एंटीजन के लिए अगेंस्ट एंटीबॉडीज से स्टेन किया गया तो दे वर फाउंड ओवर हियर। सो येलो के साथ साथ जो आपको ग्रीनिश टिंज नज़र आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ T antigen presence inside the nucleus. Inside the nucleus T antigen expression हो रहा है, LT antigen expression। ठीक। अच्छा, इसके साथ लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट्स में ये नोन हुआ कि बेसिकली होता ये है कि जो ये DNA वायरस है SV40 DNA वायरस लीनियर फॉर्म में नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन के तहत होस्ट के साथ रेंडमली इंटीग्रेट कर जाता है। ये भी हो सकता है कि ये पूरे का पूरा जीनोम ही इंटीग्रेट कर जाए ह्यूमन जीनोम के साथ, किसी भी जगह पे कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। ठीक है, ये हो सकता है कि ये पूरा ह्यूमन जीनोम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर आ जाए। यानी यहाँ पे ह्यूमन क्रोमोसोम है ना, ये लंबा सारा थ्रेड जो पड़ा हुआ है, इसके साथ सबसे पहले क्या किया वायरस जैसे ही सेल के अंदर एंटर हुआ, उसने अपने आप को लीनियर फॉर्मेशन अरेंज की। लीनियर फॉर्मेशन में नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन, यानी जहाँ उसको आइडियल साइट मिली उसने अपनी कुछ इंटीग्रेट कर लिए पोर्शंस, या उसने बेशक एक्सट्रीमिटीज़ के साथ पूरे का पूरा कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। अच्छा, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई इसने कहा जी अब मेरा नान नुत्फ़ा आप उठाएं, यानी पूरे का पूरा खर्चा आप मेरा उठाएं, यानी मैं अब आपकी सेलुलर मशीनरी के एक्सपेंस पे डिवाइड होऊंगा और उसी पे चलूँगा। ठीक हो गया। तो ये वो इंटीग्रेशन का सिस्टम था जिसके तहत जब सेल डिवाइड हो रहा है तो वायरस भी अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है प्रोजनी को। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो वायरस है इसमें भी दो किस्म की वो पाई जाती हैं जो फीचर्स हैं। क्या, एक अर्ली रीजन है जो ट्रांसफॉर्म करता है और एक लेट रीजन है जो रेप्लिकेटिव जीन्स रखता है। सो अर्ली रीजन की इंफॉर्मेशन डार्क रेड की शक्ल में आपके सामने नज़र आ रही है, और जो लेट रीजन की है यानी रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, वो इंटीग्रेट किसी भी जगह पे हो सके। तो जहाँ जहाँ वो इंटीग्रेट करता है उस तरफ से फिर जिस वक्त रेप्लिकेशन हो रही होती है, क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा होता है, उस फेज़ में वो इंफॉर्मेशन वायरस की भी डिवाइड करता जाता है। These are the findings which were being made on SV40, which is meant for as a tumor virus. Now, rodents are not a permissive host for virus कल्टीवेशन या वायरस की ग्रोथ के लिए। रोडेंट्स तो नहीं थे ना। सबसे पहले ये कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, SV सियामीज कैट्स के अंदर। सियामीज कैट्स बड़ी प्यारी कैट्स होती हैं, आप नेट पे सर्च करो आपको पता मिल चलेगा। सो अच्छा, एक और चीज़ हुई, वो ये हुई कि SV40 का इन्फेक्शन, ये SV40 जो जीन था वो बेसिकली मास्क हुआ था पोलियो वायरस के अंदर। जब वायरस की कल्चरिंग हुई ना तो इनिशियल कल्चर्स में रेसस मंकी किडनी सेल्स के अंदर, और एक ये रेसस मंकीज़ में, ये रेसस में ये एंड गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, सो रेसस मंकीज़ थे, उनके अंदर ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो पोलियो के वायरसेस हैं उनको वहाँ पे कल्चर करते थे, और जो पोलियो के वायरसेस जब कल्चर हो रहे होते थे तो उनके अंदर यहाँ से ये एंड टाइपोग्राफिकल एरर है। एनीवे, सो मास्किंग इन पोलियो वायरस कल्चर्स ऑफ रेसस मंकी, यानी मकसद आपका पोलियो वायरस था, पोलियो के वायरस के साथ साथ ये कहीं से कंटेमिनेशन के तौर पे इन सेल्स के अंदर ग्रो करता रहा, लेकिन कोई एविडेंस साइंस नहीं दिया इसने। हाँ, जैसे ही पोलियो वायरस की कल्चरिंग को मेंटेन किया गया, एक और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अफ्रीकन ग्रीन मंकी किडनी सेल्स के अंदर जब इसको इनोकुलेट किया गया तो बड़े बड़े वैक्यूल फॉर्मेशंस हमें नज़र आई। यानी ये अगर सेल है तो उसमें एक बिग वैक्यूल फॉर्मेशन जो नज़र आ रही थी, दैट वाज थॉट टू बी SV40, कि ओहो हमारे जो पोलियो वायरस के स्टॉक्स हैं दे आर ऑलरेडी containing an unwanted guest inside them. But it was too late because at that time in 1955
सेबिन वैक्सीन ये कमर्शियल नेम है पोलियो वायरस की इनाकुलेशन का, और सैलिक, ये दो जो वायरसेस के लिए वैक्सीन्स थी, ये जो है ना इंट्रोड्यूस की गई, कम्युनिटी को दी गई। तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों को ये वैक्सीन दी गई। अब एक नई फटीक पड़ गई, वो ये थी कि जनाब हमने पोलियो के लिए लोगों को कतरे पिलाए हैं या इंजेक्शंस दिए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों के अंदर ट्यूमर आना शुरू हो जाए SV40 का। तो then there were epidemiologists were the persons who actually made some follow-up studies and came to know that no, this SV40 is not creating any tumor in the population. और यहाँ से फिर अब मज़ीद एहतियात और रिफाइनमेंट और चेक पैरामीटर्स लगाए गए कि हमें जब वैक्सीन बनानी है किसी एक चीज़ के ऊपर, तो हम स्पेसिफिक पैथोजन फ्री के साथ साथ ओवरऑल पैथोजन फ्री फिनोमिना भी चेक किया करें। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी कि हम बेसिकली बना पोलियो वायरस का कल्चर रहे थे और उस कल्चर से हमने वैक्सीन बनानी थी। तो उसके अंदर हमें एक पॉइंट पे पता चला कि अफ्रीकन ग्रीन मंकीज़ में जो पोलियो के स्टॉक्स हैं, दे वर ऑलरेडी कंटेमिनेटेड विद SV40, while these vaccines Sabin, live virus, and Salic, which is an inactivated form of polio virus, were given to the population in 1955 to 1963. Then there was a need for follow-up studies to those individuals, and these follow-ups were not made for 1 or 2 years. They were made up of decades. And after decades of research, it came to know that SV40 is not inducing any sort of tumor to those individuals. Thanks, we're safe. Then there are certain characteristic features which are being observed for a transformed cell. Generally ये होता है कि जो सेल्स होते हैं ना, वो एक जगह पे जब ग्रो कर रहे होते हैं तो वो अपनी जगह को स्टिक करते हैं और अपनी जगह के ऊपर ही ग्रो कर रहे होते हैं, यानी दे ऑलवेज नीड अ मीडियम एंड दे ऑलवेज नीड समथिंग टू ग्रो। तो उनकी डिपेंडेंसी है ग्रोथ के लिए किसी एक पर्टिकुलर एंकरिंग पॉइंट पे, यानी एक सेल ने अगर ग्रो करना है तो वो यहाँ पे पहले बैठेगा, उसके बाद इधर से या इधर से अपने आप को अपेंडेजेस बनाएगा और एक्सटेंड करेगा। कैंसर के केस में यूँ किया जाता है कि आप एक बड़ा सारा वेसल लेते हैं, या फ़र्ज़ कर लें आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप सबसे पहले यूँ समझ लें कि आप जैसे कस्टर्ड नहीं डाल देते, वैसे ही आप एक कस्टर्ड या जेल सा एक बना के ना, मीडिया, वो बना के रख देते हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ कीजिए कि वो जो आपका मीडिया या कस्टर्ड बना हुआ है, उसमें आपने सेल्स को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड का मतलब ये है कि ये एक सॉलिड फॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक, यानी मैं एक टेस्ट ट्यूब बनाई, उस टेस्ट ट्यूब में इस लेवल तक, यहाँ से लेके तो यहाँ तक जेल है। इस जेल फॉर्मेशन को मैंने इसलिए बनाया कि आई ट्राई एंड देन आई सस्पेंड सर्टन सेल्स, कैंसर सेल्स ऑन द टॉप, और कुछ सेल्स हैं जो इसके अंदर यहाँ पे चले गए, कुछ यहाँ पे आ गए, कुछ यहाँ पे आ गए, कुछ यहाँ पे आ गए। ठीक है। नाउ आई बिलीव कि अगर तो ये सेल्स के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी को असेस करना चाह रहा हूँ, क्या प्रॉपर्टी होती है वो सेल्स की? वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर तो क्या ये सेल्स के अंदर ये एबिलिटी है, ये वाले सेल्स जो भी थे, यानी मैंने इनके अंदर कैंसर सेल्स जो कि इस वक्त लेक्चर के हिसाब से RSV एक्सपोज्ड हैं या कोई भी वायरस का एक्सपोज्ड है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्या ये वाले कैंसर सेल्स जब इस टेस्ट ट्यूब में जाते हैं तो इसके अंदर एंकर इनके पास कोई नहीं है, ये बेसिकली लटक रहे हैं ना यहाँ पे इस जेल के अंदर मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में। और क्या मैं इनको अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जनरली कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनका डिवाइडिंग या डबलिंग टाइम 24 आवर्स से 48 आवर्स तक होता है, वो नॉर्मली फॉल इन 24 आवर्स कैटेगरी। नाउ क्या हम जब 24 आवर्स के बाद देखेंगे तो क्या ये सेल्स यहाँ पे एक बड़ी सारी कॉलोनी बना सकते हैं? अच्छा, अगर ये बना लेते हैं, अपने आप को डबल कर लेते हैं, दैट मीन्स दे आर एंकरेज। एंकर का मतलब कोई भी कुंडा जिसके ऊपर ये एंकर हो, तो एंकरेज इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल्स। एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल्स क्या हुए फिर? इसका मतलब यह है कि इनको कोई बेसल फॉर्मेशन या प्लास्टिक शीट या कोई एक ऐसा स्पॉट नहीं चाहिए था जिस पे ये खड़े होकर अपनी ज़रूरियात पूरी करते। ठीक,
ये वो फीचर है जो कैंसर सेल्स के अंदर होता है. सो दे अटेन एंड एंकरेज इंडिपेंडेंस. एंकरेज इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि इनको ज़रूरत नहीं है कि ये किसी एक डी मॉडल के अंदर खड़े हों. ये कहीं भी सस्पेंडेड फॉर्मेशन के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं. नॉर्मली ह्यूमन के जो सेल्स हैं वो एंकरेज डिपेंडेंट है, यानी इनको कोई ना कोई ऑर्गन, कोई ना कोई एक ऐसी सरफेस चाहिए जिस पे ये ग्रो करें. They can't grow in what you can say space sort of thing. They always need some anchoring point to hang, to stand with. ठीक है. तो ये फिनोमिना समझ आता है कैंसर सेल्स के अंदर कि वो एंकरेज इंडिपेंडेंट ग्रोथ करते हैं. तो व्हाट यू आर लुकिंग राइट नाउ in this pink view is basically the cells which are being suspended in a gel. The gel obviously contains the useful nutrients, but those nutrients are not what you can say freely floating like in a petri dish. They are not in liquid form, they are already solidified like in a custard form. But these cells attain a property to grow and divide. This is encourage independent growth. So what we learn in this lecture is that there are certain features attained by the transformed cancer cells. First, their morphology is altered. They lost of contact inhibition and they start growing rapidly. Reduced requirement on mitogenic factors. So irrespective of whether we supply some growth factors from the outside source, they know how to survive and how to multiply. Their saturation density is high. By saturation density means they're irrespective of a monolayer formation. Whenever they are dividing, they just increase their number. यानी फ़र्ज़ करें अगर एक सेक्शन को इस तरह से देखना शुरू करूं कि सेल्स जो थे वो अपनी अटेन कर रहे थे शक्ल, और एक जगह पे सेल्स होने चाहिए थे 8, तो उन्होंने अपनी सेचुरेशन डेंसिटी बढ़ा ली. यानी यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये जो मैंने आपके सामने ट्राइंगल्स बनाई ना, इनके काउंट कर लेते हैं नंबर्स, तो कि इतनी ही जगह पे सेल्स होने चाहिए थे. बट अगर कैंसर सेल्स होंगे तो वो इसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इन बाउंड्रीज़ को. दे जस्ट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इंक्रीजिंग देयर नंबर इरिस्पेक्टिव ऑफ मॉर्फोलॉजी. सो एक बिल्कुल कीचू और बिल्कुल एक एग्जॉस्टिव सा स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा. And the inability to halt proliferation. Okay, then they increase the glucose transport. Okay, so as we learn in aerobic glycolysis phenomena that cancer cells require more glucose intake because they are not entering in the Krebs cycle and they are mainly relying on glycolysis. तो वो जो last lectures में हमने समझा था. So that's all from my side. Thank you very much for your time and valuable attention. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.